In the previous chapter, we have studied about the kidneys. We have started the human respiratory system and studied about the kidneys. Now we are going to deal with nephrons. Nephrons. These nephrons are known as the structural and functional unit of the kidneys. नेफ्रॉन को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज कहते हैं. याद होगा जैसे हम लोग अल्वियोली जो है, अल्वियोली को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स भी कहा जाता है. वैसे ही nephrons are the structural and functional unit of the kidneys. Why are they so called? Because किडनी में जो भी फंक्शन होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि किडनी में जो भी फंक्शन होता है वो फंक्शन किसके कारण से हो रहा है? दैट फंक्शन ओकर्स ड्यू टू द नेफ्रॉन ओनली. किडनी में जो फंक्शन हो रहा है, कौन सा फंक्शन? दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड. ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके उसको रिमूव करना किडनी में होता है. ये किसके कारण से होता है? इट इज अल्टीमेटली ड्यू टू द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स ओनली. नेफ्रॉन के कारण से हो रहा है ये फंक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट कहते हैं. फिर स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज लंग्स का जो किडनीज का जो स्ट्रक्चर है ये किसने मिलकर बनाया है? नेफ्रॉन ने मिलकर बनाया है. बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिलकर के. इन ईच किडनी देयर आर अराउंड 10 to 15 million नेफ्रॉन इन ईच किडनी. यही नेफ्रॉन्स मिलकर के किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाता है, बेसिक स्ट्रक्चर, और यही नेफ्रॉन्स उसका बेसिक फंक्शन भी करता है. दैट इज व्हाई nephrons are known as the structural and functional unit. So in each kidney we will see that there are about 1 to 1.5 million nephrons in each kidney. हर एक किडनी में, ठीक है? There is 10 to 15 lakh nephrons are there. Now nephrons जो है, they consist of two parts. Nephrons can be divided into two parts. One is the Malpighian tubule or Malpighian corpuscle, we can say Malpighian corpuscle. Another one is the renal tubule, Malpighian tubule or Malpighian corpuscle. ठीक है? Malpighian tubule और corpuscle में क्या क्या included है? It includes, Malpighian corpuscle includes glomerulus and Bowman's capsule. ये दोनों चीज इसमें इंक्लूडेड होता है. renal tubule में proximal convoluted tubule, Henle's loop, that is loop of Henle. Another one is distal convoluted tubule and collecting duct, mainly नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन का ये तीन पार्ट है mainly: proximal convoluted tubule and loop of Henle and distal convoluted tubule. These three are included in the renal tubule. और Malpighian tubule, Malpighian corpuscle में सिर्फ ग्लोमेरुलस और Bowman's capsule included होता है. ये दो चीज, ठीक है? Now we will see the functions and the structure of each of them. What is glomerulus, what is Bowman's capsule, what is PCT, DCT, Henle's loop, क्या है, एक एक करके देखेंगे. तो नेफ्रॉन का यही दो मेन पार्ट्स होता है: Malpighian corpuscle जिसमें ये दो चीज होता है, और renal tubule जिसमें ये तीन होता है. Okay, now let's begin. So number one, Malpighian corpuscle. In this Malpighian corpuscle, first let us see glomerulus.
नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूं। ओके, हियर दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। यहाँ पे ग्लोमेरुलस, इन द नेफ्रॉन there is a cup shaped structure. This cup shaped structure that is present in the very beginning, और ये किडनी का कॉर्टेक्स रीजन में होता है। It is present in the cortex region of the kidney. This one you see, ये PCT, DCT और ये जो है कप शेप स्ट्रक्चर, ये सब कौन से रीजन में होते हैं? They are present in the cortex region. And this thing, ये जो है लूप ऑफ हेनली, ये कहाँ पे होता है? It is present in the medulla portion, medullary. It is present in the cortical region. It is present in the medullary region. You know cortical and medullary. Yes, you have known. ये जो किडनी है, किडनी का ये बाहर वाला जो ये आउटर लेयर है, that is known as the cortex. And इसके बाद ये जो मिडल लेयर, ये मिडल लेयर जो है, that is known as the medulla. We have learned these things. तो ये ऊपर में है, दिस वन इज प्रेजेंट, ये ऊपर में है। कौन कौन से? कॉर्टेक्स और ये पीसीटी, ये डीसीटी, ये ऊपर में। दैट इज व्हाई दिस ऑल पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉर्टेक्स रीजन। और ये जो है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनली जिसको हम लोग कहते हैं, ये फिर मेडुला में है। ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पे मैं अगर बनाऊं यहाँ पे, तो दिस इज बोमेंस क्वेश्चन, दिस इज ग्लोमेरुलस, ऐसे करके पीसीटी हो गया, ऐसे करके ये है लूप ऑफ हेनली, ओके, एंड हियर इज द कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे करके कुछ होता है। तो ये तीन चीज जो है ये ऊपर में आ जाएगा कॉर्टेक्स में, ये वाला जो है ये नीचे में आ जाएगा मेडुलरी पोर्शन में, मेडुलर। तो ग्लोमेरुलस, व्हाट इज ग्लोमेरुलस? हम लोग ग्लोमेरुलस का बात कर रहे हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज ए tuft of capillaries. It is a tuft of blood capillaries. Tuft means a branch, a network of blood capillaries. You can see here this one, ये जो है यहाँ पर मैं डॉट 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 बनाया हूँ, इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है, that I cannot draw here nicely. ये बहुत सारे इसमें ब्लड कैपिलरीज है। These blood capillaries is known as glomerulus. ठीक है, so it is a tuft of blood capillaries in the Bowman's capsule. हम लोग अभी Bowman's capsule के बारे में भी पढ़ेंगे। ये है Bowman's capsule, ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है, दिस इज अ Bowman's capsule। इसमें जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं उसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस में ही क्या होगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विल टेक प्लेस एट द फर्स्ट स्टेप। ब्लड को सबसे पहले फिल्टर किस में किया जाएगा? ये इसी में किया जाएगा, ग्लोमेरुलस में ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स जो है यही ग्लोमेरुलस में ही ब्लड से निकाला जाएगा, फिल्ट्रेशन किया जाएगा। ओके, ब्लड का फिल्ट्रेशन यही ग्लोमेरुलस के थ्रू से किया जाएगा। तो ग्लोमेरुलस में यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज अगेन, वन इज द एफेरेंट, अनदर वन इज द इफरेंट। एफरेंट क्या होता है? इफरेंट क्या होता है? You see, this afferent arteriole, this is the afferent arteriole, for example. This one is afferent
आर्टेरियोल। आर्टेरियोल मीन्स ब्रांच ऑफ एन आर्टरी। कौन सा आर्टरी यहाँ पे? जो रीनेल आर्टरी था उसका ब्रांच है। ये एफेरेंट आर्टेरियोल जो है, दिस इज द ब्रांच ऑफ द एफेरेंट arteriole. Okay, this is the branch of renal artery. So renal artery क्या करता है? renal artery जो है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो ब्लड है उसको कैरी करके लाता है किडनी में। So renal artery brings nitrogenous waste material containing blood to the kidneys. वैसे ही ये efferent arteriole फिर इसमें लेकर आएगा। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल जो है ये ग्लोमेरुलस में लेकर आए। यहाँ पर ये एफरेंट आर्टेरियल हो गया, दिस इज ब्रिंगिंग नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ब्लड टू द किडनी, ये लेकर के आया है। और यहाँ पर एक और होता है, दैट इज नोन एज द इफरेंट आर्टेरियल। इफरेंट, ठीक, दिस इज इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट। So blood pressure in the efferent arteriole and the efferent arteriole are the different, दोनों अलग अलग होते हैं। Okay, 1 second. Blood in the blood pressure in the efferent arteriole and the efferent arteriole are the different, दोनों में blood pressure different होता है। एफरेंट आर्टेरियल जो है इसमें प्रेशर कम होता है क्योंकि ये लेकर के आ रहा है, इसमें प्रेशर कम होता है। एंड इफरेंट में प्रेशर ज्यादा होता है। यही प्रेशर डिफरेंस के कारण से क्या होगा, देयर ऑकर्स डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस, यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस हो जाता है। ओके, दैट वी विल स्टडी इन द बाउमेन्स कैप्सूल, उसमें देखेंगे। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर एफरेंट इफरेंट का हम लोग देख लेते हैं क्या है। एफरेंट क्या करता है? एफरेंट जो है इट इज ब्रिंगिंग नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग मटेरियल टू द ग्लोमेरुलस, लेकर के आ रहा है। और इफरेंट क्या करेगा? जो प्योर ब्लड है ये एफरेंट लेकर के आया और यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो गया, और ये इफरेंट जो है ये प्योर ब्लड को लेकर के वापस चले जाएगा। ओके, दैट ओनली यू हैव टू नो हियर। एफरेंट क्या करेगा? एफरेंट इज द ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी दैट इज ब्रिंगिंग ब्लड व्हिच कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्टेस। नाइट्रोजनस वेस्टेस लेकर के ये आया और ब्लड प्यूरिफाई हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, होने के बाद जो प्योर ब्लड है, अब प्योर ब्लड को ये इफरेंट आर्टेरियल ये लेकर के जा रहा है। ओके, सो इफरेंट आर्टेरियल कैरी प्योर ब्लड, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियल ब्रिंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड, ये एफरेंट जो है ये लेकर के आता है। इफरेंट जो है ये अच्छा वाला प्योर ब्लड को वापस लेकर के चले जाता है। सो दिस इज अबाउट द ग्लोमेरुलस। सो हियर बाउमेन्स कैप्सूल अगेन। बाउमेन्स कैप्सूल क्या है? वी हैव स्टडीड हियर, वी हैव डिस्कस्ड हियर बाउमेन्स कैप्सूल। दिस इज डबल लेयर्ड कप शेप स्ट्रक्चर। ओके, सो ये एक डबल लेयर कप शेप structure that is present in the nephron. In nephron, you can see this one जो है, this double layer cup substructure, कप की तरह जो लग रहा है, this is known as the Bowman's capsule. Okay, inside this Bowman's capsule, ये Bowman's capsule के अंदर में ही क्या होता है, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस जो है ये situated होता है। Bowman's capsule के अंदर में there are situated the extensive network of blood capillaries known as the glomerulus. अब यहाँ पे Bowman's capsule में क्या होगा? Bowman's capsule has 2 layers. Okay, double layer. I have written here double layer. So 2 layers होता है,
ये बाहर का जो है अंदर का inner and outer two layers are there. So the inner layer, inner visceral layer, outer layer जो है outer is known as outer parietal layer. याद रखना. Inner layer is visceral, outer layer is parietal in nature. Inner layer visceral, outer layer parietal. ये